Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to go through the chapter number 6 of Good by Mr. Chips. We will analyze the text and see what happens in this chapter. Actually, chapter number 6 deals with the married life of Mr. Chips. How did Catherine affect Mr. Chips' personality? How she changed his conservative ideas. So let's start the chapter number 6. There had followed then a time of such happiness that Chips, remembering it long afterward, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. कि इतनी हैप्पीनेस थी उन दोनों की मैरिड लाइफ में कि मिस्टर चिप्स को बमुश्किल ही यकीन होता कि ये कभी ज़िंदगी में हो सकता है या कभी हुआ होगा. क्यों? क्योंकि हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, कि एक शानदार कामयाबी थी उनकी शादी. कैथरीन conquered Brookfield as she had conquered Chips. She was immensely popular with boys and masters alike. Even the wives of masters, tempted at first to be jealous of one so young and lovely, could not long resist her charms. कि कैथरीन आई और उसने देखा और फतह कर लिया. उसने सबसे पहले तो मिस्टर चिप्स के दिल को फतह किया था. अब वो स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत पॉपुलर हो गई, मकबूल हो गई, और स्कूल टीचर्स में भी. हाँ, मास्टर्स की वाइफ्स ने शुरू में उससे जेलसी फील की क्योंकि वो बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन बाद में उसकी खूबसूरती को रेजिस्ट ना कर सकी और उसे पसंद करने लगी. But the most remarkable of all was the change she made in Chips. Till his marriage he had been a dry and rather neutral sort of person. He had been at Brookfield for over a quarter of a century, long enough to have established himself as a decent fellow and a hard worker, but just too long for anyone to believe him capable of ever being much more. कि सबसे बड़ी चेंज और तब्दीली जो थी वो मिस्टर चिप्स की अपनी शख्सियत में थी जो कैथरीन लाई. शादी से पहले वो एक खुश्क मिजाज और एक न्यूट्रल किस्म का आदमी था जो किसी मामले में मुदाखलत नहीं करता था. उसने एक क्वार्टर गुजार लिया था सेंचुरी का, तकरीबन 25 साल ब्रुकफील्ड में, और अपने आप को एक अच्छे उस्ताद के तौर पे, डिसेंट फेलो के तौर पे तो मनवा लिया था, और हार्ड वर्किंग टीचर के तौर पे भी. लेकिन अभी भी वो इससे ज़्यादा का अहल था. उसे पॉपुलैरिटी और लव नहीं मिला था. He had in fact already begun to sink into that creeping dry rot of pedagogy, कि वो बार बार एक जैसे लेक्चर्स पढ़ा के खुश किस्म की टीचिंग में बिजी हो गया था, और इसलिए वो उसके लेक्चर्स बोर होने लगे थे. वो लवेबल नहीं था. And then came this astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. She made him to all appearance a new man. और फिर क्या हुआ कि वही ड्राई रॉट ऑफ टीचिंग जो थी वो किस तरह चेंज हुई इस हैरान कुन गर्ल वाइफ की वजह से, जो कोई भी तवक्को नहीं कर सकता था कि वो चिप्स को एक नया आदमी बना देगी. लेट्स सी कि क्या होता है चिप्स के साथ. His eyes gained sparkle. His mind, which was adequately, if not brilliantly equipped, began to move more adventurously. कि उसकी आंखों ने रोशनी हासिल कर ली. उसका दिमाग जो कि बहुत शानदारली एडवेंचरस नहीं था, इक्विप्ड नहीं था, अब उसने ज़्यादा एडवेंचरसली या इंथुजियास्टिकली सोचना शुरू कर दिया था. His discipline improved to a point at which it could become, in a sense, less rigid. He became more popular. ये आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि जितना भी सख्त टीचर होता है वो लेस पॉपुलर होता है. तो अब उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव होता जा रहा था और वो लेस रिजिड होता जा रहा था. स्टूडेंट्स उसको पसंद करना शुरू हो गए थे. He began to make little jokes, the sort that school boys like, mnemonics and puns that raised laughs at the same time imprinted something in the mind. कि अब वो ज़्यादा जोक्स करता था और मेमोरी टिप्स, निमोनिक्स खेलता स्टूडेंट्स के साथ, और पन्स या मजाक करता लफ्ज़ों के साथ, और
जब उसकी रोमन हिस्ट्री की क्लास आती तो वो बच्चों को कुछ रोमन लॉज पढ़ाता और उनको एक मज़ाहिया रंग दे देता। जैसे टेक्स्ट में लिखा है कि wherever his Roman history forms came to deal with lex canuria, the law that permitted patrician to marry plebeians, Chips used to add, so that you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her and he said he couldn't, she probably replied, oh yes you can, you liar. Roars of laughter. ये लॉ जब वो पढ़ाता कि अमीर और गरीब आपस में शादी कर सकते हैं, तो वो बताता कि अगर अमीर इनकार कर दे तो गरीब खातून जो है, लोअर क्लास की खातून जो है, वो उसे नाराज़ होगी और उसको डांटेगी। और इस पर सारी क्लास जोर जोर से हंसने लगती। एंड कैथी broadened his views and opinions, also giving him an outlook far beyond the roofs and turrets of Brookfield. She had a cleverer brain than his, and he could not confuse her ideas even if and when he disagreed with them. He remained, for instance, a conservative in politics despite all her radical socialistic talk. But even where he did not accept, he absorbed her young idealism, worked upon his maturity to produce an amalgam of very gentle and wise. कि कैथरीन ने उसके दिमाग की सोच को वसी कर दिया था। हमने पहले भी पढ़ा है कि वो शॉ, इब्सन और बड़े राइटर्स, जो रेडिकल राइटर्स को उनको पढ़ती थी, शी वॉज वेल रेड और बड़ी एक्टिव थी। तो उसने मिस्टर चिप्स को ब्रूकफील्ड की छतों और टावर से आगे देखना सिखाया कि दुनिया ब्रूकफील्ड से बाहर भी है और ब्रूकफील्ड से बाहर दुनिया बहुत सारी चेंज हो रही है। मिस्टर चिप्स खामोशी से उसकी बातें सुनते, अगर वो अग्री ना भी करते तो वो उसके आइडियाज़ को एब्जॉर्ब करते रहते, जिससे एक अमलगम या कॉम्बिनेशन पैदा हो गया था मैच्योरिटी का और एक्टिव और इंथुजियास्टिक आइडियाज़ का उनके दिमाग में। Sometimes she persuaded him completely. It was Kathy who suggested the team from the mission school come up to Brookfield and play on one of the school's 11s at soccer. The idea was so revolutionary to introduce a group of slum boys to the serene environment of better class youngsters कि कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को बताया कि एक लोअर क्लास स्कूल का मैच सॉकर का ब्रूकफील्ड के स्कूल के बच्चों के साथ हो सकता है। ये क्लास गैप को कम करेगा। लेकिन ये आइडिया बज़ाहिर बहुत अजीब था और किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन मिस्टर चिप्स को कैथरीन ने यह कहते हुए कायल किया कि चिप्स, शी सेड, they are wrong. You know, and I am right. I am looking ahead to the future. They and you are looking back to the past. England isn't always going to be divided into officers and other ranks, and those popular boys are just as important to England as Brookfield is. ये जो क्वोट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड वॉर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो सोशल चेंजेस आ रही थी इंग्लैंड में और पूरी दुनिया में, उनको हाईलाइट करता है कि क्लास बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं। पॉपुलर या लोअर क्लास के बच्चे भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं इंग्लैंड के लिए जितने के एक हाई रैंक्ड स्कूल के। और फिर मज़े की बात है कि मैच हुआ और पॉपुलर के बच्चों ने आकर वो बच्चों के साथ मैच भी किया और डाइनिंग हॉल में डाइनिंग भी किया। और बहुत सालों के बाद ड्यूरिंग द वॉर अ प्राइवेट स्टेशन एट अ बिग मिलिट्री कैंप near Brookfield called on Chips and said he had been one of the first visiting team. Chips gave him tea and chatted with him till length, shaking hands. The man said, and always the missus saw, I remember her very well. और सालों बाद जंग के दौरान जब एक मिलिट्री कैंप लगा ब्रूकफील्ड के स्कूल, तो एक लड़का ब्रूकफील्ड का पढ़ा हुआ मिस्टर चिप्स से मिलने आया और उसने मिस्टर चिप्स से चाय के बाद पूछा कि आपकी बीवी कैसी हैं, हाउ इज़ योर मिसेस सर। तो मिस्टर चिप्स बहुत हैरान हुए कि क्या उसको याद था। और डू यू, चिप्स आंसर्ड ईगरली, डू यू रिमेंबर हाँ, रादर आई शुड थिंक एनीवन वुड। तो लड़के ने जवाब दिया उस सोल्जर ने कि मुझे ही नहीं हर बंदे को याद होना चाहिए कि देयर वाज कैथरीन ब्रिजेस। And a month or so later, Chips heard that he had been killed at Session-Dale. और बाद में पता चला कि वो सेशन-डेल की लड़ाई में मारा गया था। Thanks. This is the part 1. In next part, we are going to discuss the questions and answers of chapter number 6.